नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दाऊस की सरमायाकारी को बताया तारीख़ी और तेलंगाना की तरक्की में तमाम पार्टीज़ को साथ देने की अपील। रेवंत रेड्डी रैतु भरोसा स्कीम को ख़त्म करने की कर रहे हैं कोशिश। नलगुंडा में महाधरना से KTR का खिताब। फरवरी के महीने में बैंक 7 दिन रहेंगे बंद। डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर हैदराबाद में अफसोसनाक हादसा, 3 कमसिन बच्चे जाँ बहक। दिल्ली पब्लिक स्कूल हैदराबाद में बम की झूठी इत्तला, स्कूल इंतजामिया और पुलिस अलर्ट। अमीनपुर में गैरकानूनी कब्जे बर्खास्त, हैड्रा की कार्रवाई। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दावोस में लाखों करोड़ों रुपए की सरमायाकारी तेलंगाना के लिए एक अहम कामयाबी है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के ख़िलाफ़ जो साजिश रची गई थी वो नाकाम हो चुकी है, क्योंकि सरमायाकारों ने अपने एतमाद का इजहार किया है। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि हैदराबाद में सरमायाकारी का अमल मुसलसिल जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी अख्तलाफात के बावजूद रियासत की तरक्की के मामले में कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए और सबको इस मकसद में एक साथ काम करना चाहिए। పాటిస్తున్న విధానాలను రాజకీయపరమైన అంశాలలో విభేదించిన రాష్ట్ర అభివృద్ధి విషయంలో 2004 కంటే ముందు తెలుగుదేశం పార్టీ అమలు చేసిన విధానాలు రాష్ట్ర ప్రయోజనానికి అనుకూలంగా ఉంటే ఆనాడు వాటిని కొనసాగించిన ఈనాడు గత ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉపయోగపడే అంశాలలో నిర్ణయం తీసుకుంటే కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది అనుకుంటే ఆ విషయంలో రాజకీయ వివాదాలకు వెళ్లకుండా విధానాలను కొనసాగిస్తూనే ఇంకా స్పష్టంగా నమ్మకంగా విధానాల రూపకల్పనలో ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికను తీసుకొని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్ళింది కాబట్టి ఈరోజు ఈ దిగ్గజాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టినరు। BRS के वर्किंग सदर व रुकन असम्बली KTR ने नलगुंडा में रैतु महाधरने में शिरकत की, जहां BRS कारकुनों ने इन्हें CM के नारे लगाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर KTR ने खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रैतु बंधु स्कीम को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आरोग्यश्री हमें YSR की याद दिलाती है, जबकि रैतु बंधु KCR की स्कीम है और रेवंत रेड्डी इस स्कीम को रोकना चाहते हैं। KTR ने वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी पर भी शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये दोनों नलगुंडा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कहा, हमने नलगुंडा में चावल की पैदावार बढ़ाई और यादगिरी गुट्टा की तरक्की की और YTPS प्लांट भी कायम किया। అందరు తయారున్నారు। బాగా నీలుగుతున్న మంత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో రైతు బంధు అడిగితే చెప్పుతో కొడతా అనే మంత్రి ఒకడు ఉన్నాడు। ఇంకా చాలా మంది మీటింగ్ పెట్టుకుంటామంటే అడ్డుకునే సన్నాసి మంత్రి గింత భయపడతాడు। ఎవడన్నా మీటింగ్ పెట్టుకుంటామంటే గంత భయం ఎందుకు నీకు? భూపాల్ రెడ్డిని తీసుకుపోయి పోలీస్ స్టేషన్లో ఆడ పోలీసు వాళ్ళు అడ్డం ఉండి భూపాల్ రెడ్డి మీద దాడి చేస్తావా? సిగ్గుందా నీకేమన్నా అడుగుతున్న మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట రెడ్డి, నీకు ధైర్యం ఉంటే దమ్ముంటే గడియారం సెంటర్కు రా। గడియారం సెంటర్కి వచ్చి మా లెక్కన మీటింగ్ పెట్టి చెప్పు రైతులకు ఏం పీకింది నీ ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సర కాలంలో చెప్పు। ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, కోమటి రెడ్డి, వెంకట రెడ్డి పెరిగిన ఆకారాలు మాత్రం బాగా పెరిగినాయి, అహంకారాలు బాగా పెరిగినాయి, కానీ పీకిందేమీ లేదు నల్లగొండకు। అందుకే నేను అంటున్నా, ఏం చేసిండు కేసీఆర్ నల్లగొండ కంటే చెప్పండి। వరి ధాన్యం ఉత్పత్తిలో తెలంగాణను దేశంలో నెంబర్ 1 చేస్తే నల్లగొండను రాష్ట్రంలో నెంబర్ 1 చేసిండు కేసీఆర్। ఒకటి కాదు 3 మెడికల్ కాలేజీలు సూర్యాపేటలో, నల్లగొండలో, యాదాద్రిలో కట్టించింది కేసీఆర్। యాదాద్రి గుడిని అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్ది ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి రుణం తీర్చుకున్నాడు కేసీఆర్। తామరచెర్లలో అద్భుతంగా మొత్తం తెలంగాణలోనే అతి పెద్ద విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం కట్టించింది కేసీఆర్। చెప్పుకుంటూ పోతే ఒకటి రెండు కాదు ఎన్నో పనులు చేసినాం। దమ్ముంటే క్లాక్ టవర్ కు రా, మా భూపాలన్న వస్తాడు, మా జగదీశ్ అన్న వస్తాడు, వాళ్ళు నీ సంగతి చెప్తారనే మాట కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిండు ముందే, ఏమన్నాడు? కేసీఆర్ ఆనవాళ్ళు లేకుండా చేస్తా అన్నాడు। నేను ఒక మాట అడుగుతా, మీరు సమాధానం చెప్పండి। ఆరోగ్యశ్రీ అంటే ఎవరు యాదకి వస్తారు మీకు?
వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ అంటే ఎవరు యాదికి వస్తారు? రైతు బంధు అంటే ఎవరు యాదికి వస్తారు? ఎవరు? అందుకే రైతు బంధు బంద్ చేద్దామని చూస్తున్నాడు. ఎందుకంటే రైతు బంధు ఎన్ని పైసలు వేసినా రైతులు కేసీఆర్నే తలుసుకుంటారు, నన్ను అయితే దేకరు. కాబట్టి దీన్ని ఎట్లన్నా ఖతం చేయాలని చెప్పి గుంపు మేస్త్రి గారు పన్నాగం పన్నిండు. तेलंगाना में फरवरी के महीने में बैंक 7 दिन बंद रहेंगे। फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। दूसरे चौथे हफ्ते और तमाम इतवार के अलावा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। ये इन दिनों की फहरिस्त है जिनमें अगले महीने तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे। फरवरी 2, 9, 16, 23 इतवार, 8 फरवरी, 22 फरवरी दूसरा और चौथा हफ्ता, 26 फरवरी महाशिवरात्रि। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने चंचलगुड़ा हैदराबाद में जलसा मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया। इस जलसे में हैदराबाद की आवाम ने मौलाना का शानदार इस्तकबाल किया। मौलाना ने मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर रोशनी डाली। इस जलसे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। आने लगाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन होश के साथ रहिए। जोश बहुत अच्छी बात है, लेकिन होश के साथ पीछे हो जाइए। ये लाइट का जो कोड है, ये टेलीकोड में लगा हुआ है, इस तरीके से कोड को अगर निकलने को लाइट में गिर जाने का खतरा है। अगर की कार अंदर आ गई है, आप लोग उससे रास्ता दें, अपनी जगह खड़े रहे, अपनी जगह खड़े रहे, आहिस्ते आवाज में जरूर पड़ते रहे। पढ़े अल्लाह मोहम्मद। हैदराबाद के नाचारम में वाक़ दिल्ली पब्लिक स्कूल को ईमेल के ज़रिए बम की धमकी मौसूल हुई है, जिसके बाद स्कूल इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई की, स्कूल को खाली करवाया और तलबा को बाहिफाजत बाहर निकाला गया और वालिदैन को सूरत हाल से आगाह किया गया। धमकी मिलने के बाद पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने स्कूल की मुकम्मल तलाशी ली, ताहम कोई मुश्तबह चीज़ नहीं मिली और नाचारम PS के इंस्पेक्टर ने धमकी को झूठा करार दिया। इस मामले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। शब मेराज की रात हैदराबाद के जू पार्क आरामगढ़ फ्लाईओवर पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 नाबालिग नौजवान जाम बहक हो गए। हादसा तेज़ रफ्तार बाइक के बेकाबू होकर बरक़ी पोल से टकराने की वजह से पेश आया, जिसमें 2 नौजवान मोहम्मद अहमद और मास कादरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे नौजवान सैयद इमरान अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान इंतकाल कर गए। मुकामी MLA मोहम्मद मुबीन और कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने उस्मानिया अस्पताल पहुंचकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई मुकम्मल करवाई और मरहूमीन के अहल खाना से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। पुलिस ने इब्तदाई तहक़ीक़ात में तेज़ रफ्तारी और एक ही बाइक पर 3 नौजवानों के सवार होने को हादसे की वजह करार दिया। आज रात में 1 बजे जो फ्लाईओवर के ऊपर जो नया फ्लाईओवर बना है बहादुरपुरे से लेकर जो आरामगढ़ तक के वो फ्लाईओवर के ऊपर जो हमारे मोइनपुरे के रहने वाले 3 नौजवान जो 14 साल और 15 साल के दरमियान में है, जो वर्कमैन गाड़ी के ऊपर स्पीड से जा रहे थे, एक पोल को टकराने की वजह से स्पॉट के ऊपर ही 2 का इंतकाल हुआ, जिसका नाम मास कादरी है, दूसरा मोहम्मद अहमद है नाम बच्चे का, और तीसरे बच्चे का जो वहाँ से लेकर उस्मानिया को शिफ्ट किया गया, लेकिन रास्ते में ही इंतकाल हो गया। लेकिन वो बच्चे की शिनाख्त नहीं हो सकी क्योंकि ये तीनों दोस्त हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके अराकीन ख़ानदान को सब्र जमील अता करें।
सभी लोग कहाँ के सबके बच्चे ये मोइनपुरे के रहने वाले दो नौजवान बच्चे जो है 14 से 15 साल के दरमियान उनकी उम्र है, जो मोइनपुरे के रहने वाले। तीसरा जो बच्चा है वो बच्चे की शिनाख्त नहीं हो सकी क्योंकि तीनों दोस्त एक ही गाड़ी के ऊपर वो जा रहे थे और स्पीड में गाड़ी जो जाकर पोल को टकरा गई। वहीं पर स्पॉट पे दो का इंतकाल हुआ और तीसरे को दवाखाना उस्मानिया लाने के बाद इंतकाल हुआ। जनता पंप है ना, अपने हसन नगर को अपन जाते जनता पंप के बिल्कुल सामने फ्लाईओवर के ऊपर, वहाँ पर एक्सीडेंट। नए ब्रिज के ऊपर का है क्या? जी नए ब्रिज के ऊपर है। अगर जिसका भी ये बच्चा है तीसरा, वो भी उनके वालिदैन से भी हम फ़ोटोज़ भी वायरल कर रहे हैं कि अगर वो तीसरा बच्चे की भी शिनाख्त हो जाएगी तो उस्मानिया हॉस्पिटल के अंदर जो है उनकी मार्चरी में तीनों के डेड बॉडियों को डिपॉजिट कर दिया गया है। जैसे ही इत्तला मिली मैं और हमारे मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर जनाब सलीम साहब और हमारे इब्तदाई के तमाम सुदूर मुतमदीन यहाँ पर उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर उनके जो मामा है जनाब ताज नवाब साहब, वो हमारी इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है, उनका भांजा है और एक वहीं के वही बस्ती के रहने वाले हैं मोहम्मद अहमद साहब। तो लिहाजा मैं इस मौके के ऊपर उनके अरकान ख़ानदान के साथ हम ठहरे हुए हैं। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके अरकान ख़ानदान को सब्र जमील करे। ये अत्तापुर PS है और राजेंद्र नगर ACP आता है। अभी हमने ACP साहब से भी बात किया है। ACP साहब ने कहा है कि सुबह फर्स्ट आवर्स के अंदर पोस्टमार्टम करवा कर बॉडीज़ को हैंड ओवर किया जाएगा इस साल। तेलंगाना ST कॉरपोरेशन के चेयरमैन B नायक ने मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय के इंदिरा गांधी राशन कार्ड और गदर को पद्म अवार्ड देने के ताल्लुक़ से दिए गए बयान पर सख्त तनक़ीद की। B नायक ने बंडी संजय से मुतालबा किया कि वो अपने अल्फाज वापस लें और इस्तीफ़ा दें। B नायक ने कहा कि बंडी संजय अपने तबक़े के एतबार से ना तो रुकने पार्लियामेंट बन सकते हैं और ना ही सरपंच बनने की अहलियत रखते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे अफराद को अवाम की खिदमत करना चाहिए और इस तरह के गैर मुनासिब बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। तेलंगाना सरकार जो वादा तेलंगाना जनता से की है वो एक एक करके लागू कर रही है। यहाँ BJP BRS दोनों पार्टियां जो रेवंत रेड्डी की सरकार, कांग्रेस की सरकार जनता के फायदेमंद जो भी स्कीम्स लागू करने का काम कर रही है, इसको डाइवर्ट करने को हर दिन एक नया तरीका लेके सामने आ रहा है। 2 दिन पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम से अगर यहाँ कोई स्कीम लागू करेंगे तो हम सेंटर से पैसे नहीं देंगे बोल के बंडी संजय जी बोला। ये फेडरल सिस्टम के खिलाफ है। फेडरल सिस्टम में स्टेट का पावर स्टेट को रहते, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को रहते। स्टेट गवर्नमेंट ही कौन सी नियम से कौन सा स्कीम को लागू करना है स्टेट गवर्नमेंट का हक है, ये नहीं छीन सकते। बीजेपी संविधान के खिलाफ है, संविधान के विचार के खिलाफ है, संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, इसीलिए आज उसका मुखौटा सामने आ रहा है। और आज पद्मश्री के जो लिस्ट आया वहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे यहाँ से हम बहुत सारे लोगों का नाम भेजे, उसमें गद्दर जी का है, चुक्का रामैया जी का है, जयदिल तिरुमल राव जी का है और बहुत सारे तेलंगाना वाले को भेजे। तो खाली एक मंदकृष्ण मादिगा साहब को दिए, बाकी लोगों को नहीं दिए। गद्दर जी को ये सभी को देना था बोल के हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब बोले। बंडी संजय बोल रहा है हम गद्दर को कई को देंगे और दूसरे लोगों को कई को देंगे, वो नक्सल पार्टी का था, ये विचार बोल रहा है, ये ऐसा बात कर रहा है। वो हमारे विचारधारा वाला नहीं है, इसलिए हम नहीं दे। हम खाली बीजेपी का विचारधारा, RSS का विचारधारा वाले को ही हम पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड देंगे बोल के आज बंडी संजय जी बोल रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा बंडी संजय जी आप भारत संविधान के हिसाब से चल रहे या नहीं तो बीजेपी का विचारधारा के हिसाब से चल रहे। कोई पार्टी का विचारधारा अलग अलग हो सकता है, मगर संविधान की विचारधारा से इस देश चलना चाहिए। आप संविधान का ऊपर प्रॉमिस किए करके आज मंत्री बने हैं, अगर आप संविधान की विचारधारा से नहीं चलेंगे तो आप 1 मिनट भी मिनिस्टर होने के लायक नहीं हो सकते। आप मिनिस्टर के इस्तीफा दीजिए और बाहर निकलिए। गद्दर जी गरीबों के लिए काम कर रहा, मजहब कोई भी मजहब नहीं देखा, कोई भी जाति नहीं देखा, तेलंगाना के लिए काम कर रहा, काम किया। बहुत सारे लोगों की आवाम गरीबों का आवाज बन के यहाँ गीत गाया था। जिस दिन उनका देहांत हुआ था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद
चिट्ठी लिखे थे कि इतना हमारे धरती पुत्र को हम खोलिए, मगर आज मोदी जी का चिट्ठी को आप गलत साबित करना चाह रहे हैं क्या? उस दिन वाजपेयी जी बोले थे इंदिरा जी दुर्गा माँ है, पाकिस्तान दो टुकड़े में बांटकर बांग्लादेश नया बनाई थी इंदिरा जी, तो उस दिन इंदिरा जी को दुर्गा माता के नाम से वाजपेयी जी बोले। क्या आज वाजपेयी जी का बात गलत है बोल के बंडी संजय बोलना चाह रहे हैं क्या? इसलिए एक पार्टी का विचारधारा से ऊपर नहीं उगल पाए वो संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, संविधान के पद पे नहीं बैठ सकते। इसलिए बंडी संजय जी को इमीडिएटली उनके पद से निष्कासित करना चाहिए, ये हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड कर रहे हैं। इमीडिएटली वो केंद्र सरकार से बाहर निकलना है और वो एमपी के लायक भी नहीं है, क्योंकि एमपी जो बनेगा वो संविधान का हिसाब से बनेगा। और वो बोल रहे हैं बीजेपी विचारधारा वाले को देंगे। अगर बीजेपी विचारधारा वाले को देंगे आप, तो बंडी संजय का जाति कौन सा है? बंडी संजय आप ओबीसी आते हैं, एससी एसटी ओबीसी को तो इस देश में राज करने का अधिकार नहीं है। बीजेपी आरएसएस के विचारधारा से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य बिजनेस कर सकता है, क्षत्रिय रूल कर सकता है, ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मगर आप रूलिंग में कैसे रह सकते हो? आप आपकी बीजेपी का विचारधारा अगर आप मानेंगे तो आपको सेवा करना चाहिए। आप एमपी के लायक नहीं बनोगे, सरपंच के भी लायक नहीं बनोगे, और यहाँ के आपके हमारे माननीय प्रधानमंत्री ओबीसी है, वो भी प्रधानमंत्री के लायक नहीं बनेंगे। और हमारे जो अमित शाह जी है, हमारे होम मंत्री, वो भी रूलिंग करने का लायक नहीं बनेंगे। आरएसएस की विचारधारा के हिसाब से, बीजेपी का विचारधारा से हिसाब से जाओगे तो आप सब इस्तीफा देके और खाली राजपूत आज राज करेगा, ब्राह्मण गैर करेगा और व्यापारी व्यापार करेगा। आप तो सेवा करने का हिस्सा में आओगे, आप तो फिर सेवा में चले जाइए, इमीडिएट इस्तीफा देके सेवा में चले जाइए। हैदरा हुक्काम ने मंगल के रोज़ अमीनपुर संगारेड्डी ज़िले के पद्मावती लेआउट्स में गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। ये इक़दाम मुद्दा भवन में प्रजावानी प्रोग्राम के तहत दर्ज शिकायत के बाद किया गया। इन्हदाम शुदा ढांचों में साबिक़ वाईएसआरसीपी एमएलए राम भूपाल रेड्डी की फेंसिंग वॉल भी शामिल थी, इसे भी मुनहदिम कर दिया गया। रिहायशियों ने पहले हुक्काम से बातचीत की थी कि पद्मावती नगर के 24 एकड़ लेआउट जो सर्वे नंबर 193, 194 और 323 के तहत आता है पर कब्जा किया गया था। इन्हदामी कार्रवाई का मकसद इन शिकायतों को हल करना और इलाके को असल हालत में बहाल करना था। मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल ने मुसलमानों से इदारा अनीसुल ग़ुरबा में यतीम बच्चों का दाखिला करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये इदारा दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी फ़राहम करता है और बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म फ़राहम करता है। मौलाना ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो यतीम बच्चों को इस इदारे में दाखिला करवाएँ ताकि वो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज मैं आपसे एक खुसूसी अपील कर रहा हूँ। रियासत के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साबिक़ रियासत हैदराबाद में जो एक इदारा अनीसुल ग़ुरबा 103 साल पहले क़ायम किया गया था और वो एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है और इस इदारे से सैकड़ों ऐसे तालिब इल्म जेवर इल्म से आरास्ता होकर आज अख्ताए आलम में अपना नाम बुलंद कर रहे हैं। अपने रियासत का और अपने हैदराबाद का नाम जो ना बुलंद कर रहे हैं। उस इदारे को अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जदीद तामीर के बाद उसमें दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया है और ऑफिशियल तरीक़े से भी उसमें दाखिलों का ऐलानात हो रहे हैं। तो यहाँ मैं हमारे मुसलमानों से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि आप अपने अपने महलों में देखिए, आप जो जिन बच्चों के अगर किसी की माँ नहीं है, इंतकाल हो गया है, या किसी के वालिद नहीं है, इंतकाल हो गया है, ऐसे लड़के लड़कियों को आप इस अनीसुल ग़ुरबा इदारे में आप दाखिल करवाएं। ये
सिर्फ मदरसा नहीं है बल्कि इन बच्चों का घर है। और इस घर में जिस तरह माँ बाप अपनी औलाद को आला से आला तालीम दिलाने की कोशिश करती है और दिलाती है, तो ये इदारा भी उन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनको आला से आला तालीम दिलाने का पाबंद है। यहाँ पर जो तालीम होंगी इससे हटके कॉलेज सतह पर, यूनिवर्सिटी सतह पर भी इन बच्चों को तालीम व तरबियत का पूरा इंतजाम किया गया है। बच्चे बाहर कॉलेज में पढ़ेंगे और आकर इस इदारे में क़याम करेंगे, जहाँ पर इनकी मुकम्मल किफ़ालत का इंतजाम है। खाना पीना, रहना, कपड़े, हर चीज़ की जो ना सहूलत दी गई है। और इस मर्तबा एक और सहूलत का इजाफा हुआ है। ऐसे तुलबा और तालिबात को, लड़के और लड़कियों को भी दाखिला दिया जा रहा है जिसके बाप जो है ना अपाहिज हैं, वो कोई कमा धमा नहीं सकते या फरीश हैं, जो तवील अरसे से बीमार हैं, तो ऐसे वालिदैन के बच्चों को भी इस इदारे में दाखिला दिया जा रहा है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने इलाकों में, महल्लों में, अपने कस्बे में, गाँव में, तालुके में, ज़िले में आप इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। और जहाँ कहीं आपकी नज़र ऐसे लड़के लड़कियों पर पड़े, आप फौरी लाकर उनको अनीसुल गुरबा में दाखिला दिलाइए। ये इदारा सिर्फ मदरसा नहीं है बल्कि इन बच्चों का घर है। और मैं ये बात भी यकीन से कह सकता हूँ, हो सकता है कि हमारे घर में बच्चों को कभी कभार तंगदस्ती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी आने वाला नहीं, क्योंकि इस इदारे को जो है ना एक बहुत बड़ी पैमाने पर चलाया जा रहा है। हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, वक्फ बोर्ड की सरपरस्ती हासिल है और कई अहले खैर हजरात की सरपरस्ती इस इदारे को हासिल है। तो यहाँ पर ये बच्चे आला से आला तालीम हासिल कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, ग्रेजुएट बन सकते हैं और आगे भी ये तालीम हासिल कर सकते हैं। ये वो इदारा है जिसको बनफ्से नसीब हजरत जनाब मीर उस्मान अली खान बहादुर, जो आसिफ जा सादिस जिसको कहा जाता है, उन्होंने इस इदारे का मुआयना किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन सदर जमहूरिया हिंद ने इस इदारे का जो है ना मुआयना किया है। और आपको बताता चलूं, व्हाइट हाउस से आज भी इसके सालगिरह पर एक लेटर आता है। तो ये इदारा तारीख़ी अहमियत का हामिल है और इस इदारे से ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को फ़ायदा हासिल करना है। आप तमाम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा यतीम, यसीर और जिनके माँ बाप अपाहिज हैं, उनके बच्चों को लाकर इस इदारे में शरीक फरमाएं। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर झील में कश्ती में पटाखों के फटने से एक शख्स की झुलसकर मौत हो गई। यह हादसा भारत माता महाआरती प्रोग्राम के अख्ताम पर इतवार की रात पेश आया। झुलसने वाले शख्स की शनाख्त गणपति के तौर पर की गई, जो इलाज के दौरान सिकंदराबाद के एक अस्पताल में दम तोड़ गया। इस हादसे में एक शख्स लापता था, जिसकी शनाख्त 21 साला बीटेक के तालिब इल्म अजय के तौर पर की गई है, जिसकी भी आज लाश बरामद हुई। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दाऊस की सरमायाकारी को बताया तारीखी और तेलंगाना की तरक्की में तमाम पार्टीज को साथ देने की अपील। रेवंत रेड्डी रैतु भरोसा स्कीम को ख़त्म करने की कर रहे हैं कोशिश, नलगुंडा में महाधरना से केटीआर का खिताब। फरवरी के महीने में बैंक 7 दिन रहेंगे बंद। डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर हैदराबाद में अफसोसनाक हादसा, 3 कमसिन बच्चे जाँ बहक। दिल्ली पब्लिक स्कूल हैदराबाद में बम की झूठी इत्तला, स्कूल इंतजामिया और पुलिस अलर्ट। अमीनपुर में गैर कानूनी कब्जे बर्खास्त, हाइड्रा की कार्रवाई। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।
मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तियाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।